یہ خاص تسبیح صرف ایک رات سونے سے پہلے ایک مرتبہ پڑھنے سے 80 کروڑ روپے کی فوری مدد ملتی ہے۔ اللہ کا ولی گھر دے جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ خاص تسبیح صرف ایک رات میں ایک مرتبہ پڑھنے سے کروڑوں کی فوری مدد جو بھی کرتا ہے یہ عمل کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، رات میں صرف ایک بار یہ تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والے سے رب کی ذات اتنا خوش ہو جاتی ہے کہ عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے ذکر کرتا ہے، فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس بندے کی تمام رکاوٹیں بندشیں دور فرما دو۔ اللہ والو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ سے خوش ہو جائے، آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے، تو یہ خاص وظیفہ اور ساتھ میں ایک دعا بھی آپ کو بتاؤں گا، لہذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو پورے وظیفے کی صحیح طرح سمجھ آ جائے۔ محترم ناظرین، اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے۔ رب کی ذات جس بندے سے راضی ہو جائے اس کی نسلوں کو آباد فرما دیتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑنا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان اور مجرب ہے، اور اللہ کا کرشمہ خود دیکھو گے کہ کیسے آپ کے اوپر اللہ پاک کی کرم نوازیاں شروع ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ ساری وظائف کا بادشاہ ہے، یوں سمجھ لیجئے اس کو کرنے کے بعد آپ دیکھنا کیسے اللہ پاک کی آپ کے اوپر رحمت ہوگی، کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس عمل کو کرنے والے کی زندگی سے مشکلات ختم ہو جانا شروع ہو جاتی ہے، اس وظیفے کو کرنے والے کے تمام بگڑے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی بندش رکاوٹ ہے، آپ کا کاروبار کا مسئلہ ہے، کاروبار چل نہیں رہا، گھر میں جو بے برکتی ہے، مایوسی ہے، انشاءاللہ اس وظیفے سے یہ تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے اوپر سے ہر طرح کی جو بندش رکاوٹیں ٹوٹ جائیں گی، آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، جو بھی آپ کے مقصد ہیں، جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، وہ پورا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پہلے جو بھی آپ کام کرتے ہو وہ صحیح نہیں ہوتا، یا آپ کے ذہن میں کوئی مقصد ہے، آپ کسی کام میں لگے ہو، اس میں آپ کو کامیابی نہیں مل رہی، دعائیں بھی کر رہے ہو لیکن آپ کو کامیابی نہیں مل رہی، اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ ہر طرح کی آپ کے اوپر سے بندش، رکاوٹ، نظر اور حسد سب دور ہو جائے گا، اور آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گا۔ آج صرف ایک تسبیح پڑھیں، اور اس تسبیح کو آپ نے ضرور پڑھ لینا ہے، اور انشاءاللہ اس نایاب وظیفے کی برکت سے آپ کے ہاتھوں میں دولت ہوگی، آپ کے ہاتھوں میں پیسہ ہوگا۔ انشاءاللہ دیکھ لینا غیب سے آپ کے لیے دولت کا بندوبست ہو جائے گا۔ یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ یہ جو تسبیح ہے اس کو پڑھنے سے اللہ پاک کی ذات بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ ہستی جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جسے کوئی گمان نہ چھو سکا، تعریف کرنے والے اس تعریف سے عاجز رہے، نہ حادثات اسے بدل سکے۔ اسی زمانے کی بے ثباتی کا کوئی خوف نہیں، پہاڑوں کے وزن اور سمندر کی پیمائش کا علم اس کے پاس ہے، بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کے عدد سے باخبر ہے، کس پر رات کی ظلمت اور رات کی روشنی ہے سب جانتا ہے، اس پر آسمان کی بلندی، زمین کی پستی، سمندر کی گہرائی اور پہاڑ کی چوٹی پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ ہر چیز کو اس کی تمام تفاصیل کے ساتھ جانتا ہے۔ آپ آہستہ سے بولیں یا زور سے، وہ آپ کے اندر چھپے تمام بھیتوں سے باخبر ہے، وہ تمام سانس کو نکلنے اور اترتے ہوئے دیکھتا ہے، رگوں میں چلنے والے خون کی آواز سنتا ہے، پتے کے ٹوٹنے اور زمین پر اس کے گرتے وقت آواز کو سنتا ہے، زمین کے اندر اس کے نیچے چلنے والے کیڑوں کی آواز سنتا ہے، سمندر کی تہ میں چلنے والی مچھلی کی آواز سنتا ہے، بحر و بر میں جو کچھ ہے سب اس کے علم میں ہے۔ وہ اس کائنات کا بادشاہ ہے، رب ہے، پالنے والا ہے، اس کی آنکھ کو نہ اونگ آتی ہے نہ سوتا ہے، کالی رات ہے، ایک کالا پہاڑ ہے، اس میں کالا پتھر ہے، دنیا کی ایک چھوٹی اور کمزور ترین مخلوق چیونٹی جس کی رنگت بھی کالی، اس کالی رات میں کالے پہاڑ کے کالے پتھر پر یہ کالی رنگت کی چیونٹی چل رہی ہے۔ چیونٹی کے چلنے سے پتھر پر جو نشان پڑتے ہیں وہ نشانات ہمارے حاشیہ خیال اور تصور میں بھی نہ آتے ہوں گے۔ اس لکیر کو اس کے تمام تفاصیل کے ساتھ
अर्श पर बैठकर देखने वाली हस्ती का नाम अल्लाह जल्ल जलालहू है। आप कभी चूंटी को उठाकर उसके पांव तलाश करने की कोशिश करें, आपको उसके पैर ही नजर नहीं आएंगे। इन पांव के निशानात दिन की रोशनी में अगर वो नरम मट्टी पर चले तब भी उसके पांव के निशानात नजर आना महाल है। रात की जुल्मतों में काले पहाड़ के सख्त काले चट्टानों पर उसके पांव के निशानात नजर आए, जबकि वो अजीम व बरतर हस्ती अर्श पर से इस छोटी मखलूक की जुल्मात के अंदर पांव के निशानात को देखता है। हम जिस जगह आबाद हैं उसे दुनिया कहते हैं। ये रोज हमारे मुशाहिदे से गुजरता है। यहाँ हमें सब नजर आ रहा होता है। यहाँ हमने अपने मुशाहिदात से फवायद और नुकसानात के पैमाने बनाए हुए हैं, जबकि ये दुनिया इस बहरे ज़खार का सिर्फ एक कतरा है जिसकी वुसअतों ने चारों सिमत से इसे घेरा हुआ है। हमारी अनाज से खारिज एक वसीओ अरीज एक कायनात आबाद है जिसका एक खालिक है, एक मुदब्बिर है। उसकी अजमत व जलाल की निशानी ये अजीम कायनात है। इस कायनात के वजूद के तस्लीम करने से उसके वजूद को तस्लीम करना एक आम इंसान के लिए लाजिम हो जाता है। जब किसी को अल्लाह ताला की जात का हकीकी इदराक हो तो वो हिस्सी तौर पर न सही मगर तसव्वुराती तौर पर जैसे अल्लाह ताला को देख रहा होता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत में इस वाक़े का बयान है, जब रसूलुल्लाह अल्लाह ताला की अजमत को बयान फरमा रहे थे उस वक़्त आपकी कैफियत ये थी, आपका जिस्म हिल रहा था और देखने वालों को ऐसा महसूस हो रहा था आप जमीन पर गिर पड़ेंगे। उसे अल्लाह ताला की मार्फत और खशियत कहते हैं। ये मार्फत इंसान के अंदर एक भौचाल की कैफियत पैदा करता है। ये कैफियत अल्लाह को देखे बगैर देख लेना है। याद रखें कि अल्लाह की इस अजीम कायनात जिसका हम एक बहुत ही छोटा कतरा है, उसने हमें एक ही मकसद के लिए पैदा फरमाया है, वो है इबादत। इबादत और सिर्फ इबादत, उसके अलावा कोई मकसद हयात नहीं। बेशक वसाइल व जरिए हों। अल्लाह के खजानों में किसी कमी को पूरा करने के लिए इंसान को पैदा नहीं किया गया और न इस हस्ती ने अपने दिल लगी के लिए इसे पैदा किया है, न उस जुल जलाल का कोई काम अटक गया था जिसकी वजह से इंसान की खलकत जरूरी थी। इंसानी खलकत का वाहिद मकसद सिर्फ इबादत है। इंसान से इस खुदाए सबूह कुद्दूस की सिर्फ इबादत मतलूब है, इसलिए सुबह शाम उसे याद करो। यही इंसानियत की मेराज और इम्तियाज है। और जो अल्लाह का हो जाता है तो सारी दुनिया उसकी गुलाम हो जाती है, अल्लाह उसका दोस्त बन जाता है। फिर इस इंसान के दुश्मन अल्लाह के दुश्मन बन जाते हैं, उसके दोस्त अल्लाह के दोस्त हो जाते हैं। जिसने अल्लाह के दोस्त को तकलीफ पहुंचाई वो कादिर मुतलिक उससे ऐलान जंग कर लेता है। अल्लाह का होकर देखिए, अल्लाह की जात को मकसद बनाकर जिंदगी गुजार कर तो देखिए। अल्लाह के लिए मरना, उस पर मिटना सीखिए, उसके लिए जीना सीखें। खुशी भी वही हो जो उसे पसंद हो, गम में भी उसका लिहाज इजहार भी जो उसे पसंद है, और अख्फा भी वो जो उसे पसंद हो। हर दम और हर लम्हा उसकी रजा मतलूब मकसूद हो। अल्लाह ताला की इबादत के साथ साथ हमें हर पल हर वक्त हर लम्हे शुक्र अदा करते रहना चाहिए। इस्लाम ने शुक्र अदा करने के हमें 4 तरीके बतलाए हैं, दिल से, जबान से, नेमतों के इस्तेमाल से, मखलूक खुदा की खिदमत से। दिल से शुक्र अदा करने का तरीका ख्वाह वो इंसान हो या अल्लाह, दोनों बराबर हैं। मसलन अगर कोई आप पर एहसान करता है और आप उसकी बजाय एहतराम किसी और का करें तो वो नाराज हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। अगर हम अल्लाह की बजाय किसी और का एहतराम व इकराम करेंगे तो इस अमल से अल्लाह ताला बहुत सख्त नाराज हो जाते हैं। हम अल्लाहु अकबर तो कहते हैं लेकिन दिल में एहतराम पैसे का है कि इससे सब कुछ होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे नजरिए और अकीदे से अल्लाह नाराज होते हैं। ये एक फितरती उसूल है कि जिस शख्स पर कोई एहसान करता है वो बंदा उसका गुलाम बन जाता है और उससे मोहब्बत करने लग जाता है और उसकी पसंद को तरजीह भी देता है। इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम अपने हकीकी अल्लाह ताला के अहकामात को हर वक्त मानने की और तरजीह देने की कोशिश करें। जबान से शुक्र अदा करने का तरीका, इंसान इसका इकरार और इजहार करे कि ये चीज मेरे अब्बू ने या भाई वगैरह ने दी है। इसमें रियाकारी मकसूद ना हो। अल्लाह ताला की हर दी हुई चीज पर अल्हम्दुलिल्लाह कहें। मसलन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे आंखों की नेमत से नवाजा,
वगैरह। बंदों का शुक्र अदा करने का मतलब ये है कि जब कोई आपको कोई चीज़ दे उस पर उसको जज़ाकल्लाह के दिया जाए ताकि इसके ज़रिए उसकी दी हुई नेमत का उसको बदला मिल जाए। हदीस में आपने फरमाया, जो शख्स बंदों का शुक्र अदा नहीं करता वो मेरा शुक्र अदा नहीं करता। नेमतों के अमली इस्तेमाल से, अमली इस्तेमाल का मतलब ये है कि अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को अमली तौर पर इस्तेमाल करना और उसका इस्तेमाल करके इजहार करना। एक मशहूर वाक़या है कि एक सहाबी आपके पास आए और उन्होंने मैले कुचैले कपड़े पहने हुए थे, जिस पर आपने नाराजगी का इजहार करते हुए फरमाया कि जाओ कपड़े साफ सुथरे पहन कर आओ, क्योंकि अल्लाह ताला खुद भी जमील है और खूबसूरत और जमाल को पसंद करते हैं। जब हम अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का अपने वजूद पर इजहार करते हैं तो उससे अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं, लेकिन अगर इस्तेमाल न की जाए तो ये भी एक नाशुक्री है। मखलूक खुदा की खिदमत करके शुक्र अदा करना मतलब ये है कि अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से दूसरों को फायदा पहुंचाना, मसलन अपने इल्म, अमल, हुनर, माल और तज़किया नफ्स वगैरह से दूसरों की रहनुमाई करना, ये भी एक शुक्र का बहुत बड़ा तरीका है। तो मोहतरम नाज़रीन, अब इस अमल का तरीका कार जान लें। आपने कौन सी तस्बीह कैसे पढ़नी है, कितनी बार पढ़नी है, कौन सी एहतियात करनी है, आप अच्छी तरह जान लें। आपने इस अमल को पूरे यकीन के साथ करना है। आपके जहन में किसी भी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। आपने पूरे यकीन के साथ करना है और खामोशी के साथ करना है और पूरी तवज्जो के साथ करना है। वजीफे के दौरान आपने बोलना नहीं है। अक्सर कुछ लोग कोई काम कर रहे होते हैं, कुछ अरबी कलिमात पढ़ रहे होते हैं, आपस में गुफ्तगू भी कर रहे होते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। पूरे यकीन, तवज्जो के साथ, खामोशी के साथ इस अमल को करना है। मर्द, औरत, बच्चा, बूढ़ा, कोई भी इस अमल को कर सकता है और औरतें इसको खास अय्याम में भी कर सकती हैं। इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। इस अमल को कहीं भी बैठकर किया जा सकता है। इस अमल को करने से इंशाअल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। सबसे पहले आप पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ ये आपने एक बार पढ़ना है। उसके बाद आपने दुरूद पाक पढ़ना है। एक बार मेरे साथ भी पढ़िए ताकि सवाब मिल सके। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद पाक आपने सिर्फ 3 बार पढ़ना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर। और अगर किसी मेरे बहन भाई को ये दुरूद पाक नहीं आता तो इतना भी कह सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आपने एक तस्बीह पढ़नी है। ये दोनों मिलाकर एक लफ्ज बनेगा, मतलब या अल्लाहु या अजीमु। ये पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। इसी तरह आपने एक तस्बीह इनकी पढ़ लेनी है कि उसवा हुस्ना में से एक नाम अल अजीम है। अल अजीम का मतलब है अजमत तो बुजुर्गी का मालिक। या अजीमु का वजीफा इज्जत व बुजुर्गी पालने के लिए इंतहाई मुजर्रब और मकबूल है। या अजीमु के बेशुमार फवाइद हैं। या अजीमु का वजीफा करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला इज्जत, हैबत और वकार अता करता है। इस विर्द को करने वाले को जाबिर सुल्तान के खौफ से निजात मिल जाती है और पढ़ने वाले को सुकून नसीब होता है। अगर आपका कोई भी वजीफा आपके काम नहीं आ रहा तो अमल लाजमी करके देख लें। इंशाअल्लाह इस अमल के बाद पता चलेगा कि वज़ाइफ काम कैसे करते हैं। सारी जिंदगी अमल करते रहो और दौलत पैसे दोनों हाथों से समेटते रहोगे। जिसने इस अमल को किया मालो दौलत बेहिसाब और बेतहाशा पाया। एक बार अमल करके देखें। इस तस्बीह के बाद जो वजीफा आपने पढ़ना है ये बड़ा मुजर्रब और खास वजीफा है। इस अमल को किसी भी वक्त, किसी भी दिन इशराक के बाद से मगरिब तक पढ़ें। आपने पढ़ना है अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के बाद 21 बार पढ़ना है। उसके बाद 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़नी है अल मुख्तसर। नाज़रीन के जब आप इस अमल को करोगे इंशाअल्लाह आप देखोगे कैसे आपके काम बनते चले जाएंगे। जो भी आपके काम अटके हुए होंगे वो सही हो जाएंगे। आपका दौलत का मसला है, सेहत का मसला है या बीमारी का मसला है, जो भी आपकी जिंदगी में मुश्किलात चल रही हैं इंशाअल्लाह वो मुश्किलात दूर हो जाएंगी। आपकी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी, आपकी जिंदगी में आसानियां आ जाएंगी। अल्लाह पाक के हुक्म से ये इसमें मुबारक और इस दुआ की भी बहुत ताकत है। इंशाअल्लाह इस वजीफे की बरकत से ही आपकी जिंदगी में आसानियां आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपने दुआ भी मांगनी है अल्लाह पाक से कि ए अल्लाह मेरी जिंदगी में आसानियां पैदा कर दे। ए अल्लाह तू सब का बादशाह है। ए अल्लाह तू हर चीज पर कादिर है। तो मेरी मुश्किलात दूर कर दे, मेरी परेशानियां दूर कर दे, मेरी दुआएं कबूल कर दे।
جو بھی میرے اوپر بندشیں، جو بھی میرے اوپر رکاوٹیں ہیں وہ دور کر دے۔ اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا کہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ حضرت آدم سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، اور ہمیں ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اپنے رزق میں برکت و وسعت کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔